I would request PHDCCI President, Mr. Sanjay Agarwal, to please welcome Shri Gandhi. Shri Nitin Gadkari, Honorable Union Minister of Roads, Transport and Highways, Government of India, General Manoj Mukund Varadkar ji, the Chief of Army Staff, Shri Pradeep Kulkarni, Senior Vice President, PhD Chamber, Shri Saket Dalmia, Vice President, PhD Chamber, Shri Saurabh Sanyal, Secretary General, former Presidents of the Chamber, members of the Managing Committee, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends from the media, a very good morning to you all again. We are privileged to have today amongst us our Honorable Union Minister of Road, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, who has for many decades been deeply engaged in establishing a dynamic business environment in the country, both for things that he himself directly controls, but then other than that, overall with the brightness of his ideas and with the positivity of the work that he is always able to achieve and do. Honorable Minister Sir, you are a man of unparalleled experience and expertise, especially in the infrastructure sector. You have brought the highest possible international technical experience and the international experience to the Union Cabinet on this front and displayed the highest standards of efficiency in the development of infrastructure and a conducive development environment in the country, sir. Sir, we have initiated several infrastructure projects to improve the connectivity of major cities, towns and industrial corridors. And I must say that these would still count as among one of the few things that we have done, all works that we have done, especially in your own state of Maharashtra. Again, I think one can't really count all of them. And the sort of innovative things that we have done for the people of Maharashtra and then you are continuing to do it across the nation is actually amazing and it's unparalleled, I must say. You are one of the best performing ministers in the government, sir. Your leadership and guidance, tremendous progress has been achieved. Under your leadership and guidance, tremendous progress has been achieved in the building of national highways across the country. Your ministry has achieved record-breaking milestone of constructing 37-kilometer highways per day in 2021, which is unprecedented. Also, it's never happened in our history actually. Also, over the last 7 years, the length of national highways has gone up by 50% to 1.37 lakh kilometers as of 31st of March 2021. This must count as one of the largest road networks in the world. We appreciate your role in getting constructed 1,300 km long Green Expressway linking Delhi with Mumbai, which is undergoing construction. Sir, you have been responsible for privatizing the highway constructions in India on public-private partnership and build-operate transfer BOT basis concept, widely used all over the country today. You are also credited with the construction of Zojila Tunnel, the biggest tunnel in Asia. Your key role in launching the new Motor Vehicle Act is again undoubtedly remarkable. As PWD Minister of Maharashtra, you constructed the first of its kind in India, the Greenfield Mumbai-Pune Express Highway, which is with 53 flyovers in Mumbai, to ease the traffic in a record time of 4 years. You earned the certificate of Roadkari, sir, from late Shri Balasaheb Thackeray for your infrastructure push during the BJP Shiv Sena government rule. You were also the one who conceived the Bandra-Worli Sea Link in Mumbai. During your tenure, 13,726 remote villages of Maharashtra were connected with all-weather road connectivity. As member of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, you were responsible for building bridges on Ganga and Brahmaputra rivers. The PhD Chamber highly appreciates the approach of the government for developing water infrastructure
for the development of the economy, both soft and physical infrastructure, which helps boost growth and providing employment to the masses. Massive spending on railways, roads, ports, airports, water and irrigation, among others, will give a big push to the economic growth in the coming times. To provide a major thrust to step up the national infrastructure investments, India launched the National Infrastructure Pipeline in 2019 for the years 2020 to 2025. In the budget of 21-22, NIP was launched with 6835 projects, which has been expanded to 7,400 projects. We appreciate the government's Independence Day announcement on Gati Shakti Master Plan for developing a holistic infrastructure at a cost of rupees 100 lakh crore over the next 5 years, which could be a source of huge employment opportunities for the youth in future. The Gati Shakti Plan will help raise the global profile of Indian local manufacturers and help them compete with their counterparts worldwide. We hope that this will help develop a new future economic zones also. With these words, we welcome and invite the Honorable Minister of Roads, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari for his address to the August Gathering. Thank you. आदरणीय जनरल मीराबाई जी, प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभिवंता जी, वाइस प्रेसिडेंट साकेत डांडिया जी, सेक्रेटरी जनरल श्री सौरभ सिन्हा, उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहन, बहुत बार एसोसिएशन के मीटिंग में आने का मौका मुझे मिला है और अपनी बात रखने का अवसर भी आप लोगों ने दिया। डॉक्टर गुप्ता इस समय मुझे जब बुलाने के लिए आए थे तब मैंने उनको कहा कि मैं बहुत बार आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आप नया आदमी को किसी को और बुलाइए, मुझे क्यों बुलाएं। तो डॉक्टर गुप्ता जी के साथ मेरा पुराना संबंध है, तो नहीं भी पूछ सकता। मैंने कहा मैं जरूर आपके इस एनुअल सेशन में जरूर। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप में से ज़्यादा लोगों का संबंध दिल्ली और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों से है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा आज पहली बार मैं यहाँ कर रहा हूँ, कि दिल्ली की हमारी सबसे बड़ी समस्या है एयर पोल्यूशन की। Air pollution, water pollution and sound pollution is the biggest concern for this country. और एक समय ऐसा आता है विंटर के सीजन में कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ऊपर जाता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि इस समय दिल्ली नहीं जाना चाहिए। एक बार मैं लंदन में था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के टिकट कैंसिल कर दिए क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। उस दिन से मैं लगातार सोचता हूँ कि दिल्ली को प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले, और इसलिए मुझे सौभाग्य मिला कि दिल्ली के जल प्रदूषण और एयर पोल्यूशन के साथ थोड़ा बहुत कुछ काम करने का मौका मिला। और उसमें से रोड मिनिस्टर के नाते हम दिल्ली के आसपास करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्चा करके रोड बना रहे हैं, और इसमें से काफ़ी रोड अभी पूरे भी हुए, काफ़ी के काम जोरों में चल रहे हैं। आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ आर्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो केवल 30 किलोमीटर का है, उसको 10,000 करोड़ रुपये का बना रहे हैं, जिससे डायरेक्ट उसका एक्सेस दिल्ली मुंबई हाईवे तक खुला गया। तो विशेष रूप से दिल्ली से मुंबई एक बड़ा हाईवे बना रहे हैं, जिसका 65-70% काम हमारा पूरा हुआ है। और ये हाईवे जो है, ये दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कार से 12 घंटे में पूरा है और ट्रक के लिए 20 घंटे लगेगा। इसके साथ साथ दिल्ली से मेरठ हाईवे लगभग बन चुका है, 4 रोड भी बनने के हैं और 2 या 3 अभी बन जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और 1 दिसंबर में पूरा होगा। कल ही मेरे पास अग्रवाल जी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरठ के आए थे और 15 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं
जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम लगभग पूरा हो गया। दिल्ली के लिए हमने पेरिफेरल रोड बनाया था जो दिल्ली का रिंग रोड है और जिसके कारण दिल्ली का काफ़ी पोल्यूशन कम है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ से जो ट्रैफिक मुंबई की ओर जाता है ये पहले दिल्ली के शहर के बीच में से गुजरता है। यही धौला कुआं है जहाँ मैं अक्सर रोज फ्लाइट में आके अटकता था। ये धौला कुआं का काम मैंने उस समय अब अच्छा कर लिया है। थोड़ा सा पुलिस स्टेशन को एक बार तोड़ना है, वो वहाँ से रह गया है, तो वो भी मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया, उनसे बातचीत करके तो वो भी एंगल हो जाएगा। तो ये धौला कुआं के कारण भी तकलीफ होती थी। और यहाँ कभी कभी शादियों में दिल्ली से लोग जब गुड़गांव की तरफ जाते थे तो कभी कभी डेढ़ 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस सकते थे। तो आज स्वाभाविक रूप से काफ़ी इसके कारण कंजेशन कम है। अभी हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से एयरपोर्ट के अंदर से टनल निकालकर वसंत विहार तक लेकर है, तो जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक बीच वाला चला जाएगा। और ये दिल्ली जयपुर रोड है, इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए के और खर्चा करें ताकि दिल्ली से किशनगढ़ तक पूरा रोड ठीक से हो जाए। दिल्ली के लिए हमने दिल्ली से देहरादून नया रोड अक्षरधाम से बनाना है। इसका काम काफ़ी जोरों में शुरू हो गया, अभी भूमिपूजन नहीं हुआ। इससे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार इसी रोड पर एक 47 किलोमीटर रोड दिया है, तो हरिद्वार 2 घंटे में हो जाएगा। और इसी रोड को हम लोग अम्बाला से चंडीगढ़ की तरफ लेके जाएंगे, तो वो भी काम अब शुरू हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर कटरा हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसमें दिल्ली से गुरदासपुर तक सब कवर होगा। और उसके बाद 130 किलोमीटर कटरा वो भी काम अवार्ड करने की कोशिश है। कल मैं परसों 2-3 दिन मैं कश्मीर में था और दिल्ली से ये अमृतसर से आगे जाकर रोड जहाँ जम्मू और श्रीनगर के रोड से मिलता है, तो आप नाम बोलो इधर से, तो वो रोड से डायरेक्ट श्रीनगर जाने के बाद दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में, और दिल्ली श्रीनगर से दिल्ली 8 घंटे में, और उसी रोड से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर, मुंबई से श्रीनगर 12 घंटे में निश्चित रूप से। मैंने अभी ये रोड की टेस्ट की, तो एक जगह 140 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली तो कुछ तकलीफ थी। एक जगह 170 किलोमीटर की स्पीड से मैंने टेस्ट ड्राइव किया, कुछ नहीं। ये पूरा एक्सिस कंट्रोल है। सवाई माधोपुर में हमने बाईपास ऐसा ओवरपास बनाया, अंडरपास बनता है फॉरेस्ट में, तो हमने ओवरपास बनाया। वो कार्पेट मैंने देखा, वहाँ भी काफ़ी काम चल रहा है। ऊपर में पहाड़ी होगी और उसमें जंगल होगा और नीचे से ट्रैफिक है। तो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बता रहा गाड़ी में बैठ कर, देखो वो टाइगर वॉक। तो इस प्रकार से ये पूरे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए ये दिल्ली मुंबई हाईवे सवाई माधोपुर से आगे वहाँ से जाता है, और इसका भी काफ़ी काम हुआ है। ये जेल तक जा रहा मुंबई में। मेरा विचार है कि इसको बसी विहार से लेकर ये नरीमन पॉइंट तक लेके जाएंगे, ताकि दिल्ली से नरीमन पॉइंट से दिल्ली 12 घंटे में। मैं प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला जो मुंबई में बना हुआ है, तब मैंने सोचा था कि इसको मैं आगे बसी विहार तक लेके जाऊँ, और बाद में कुछ मैं वहाँ नहीं हुआ। तो मेरी एक इच्छा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 85,000 लोग लगेंगे और समुद्र में रोड वहाँ से डायरेक्ट वर्ली बांद्रा तक जोड़कर इसको जोड़ दिया। तो इसके साथ साथ दिल्ली में रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत से काम चल रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट काम दिल्ली में मुझे मिला, वो मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो नमामि गंगा का काम करने का मौका मिला। और उस समय गंगा नदी को मिलने वाली 40 नदी और नालों को भी हमने नमामि गंगा में दिया था,
और उस समय मैंने दिल्ली को 6,000 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट किए और उसमें दिल्ली का जो गंदा पानी है वो अच्छा करने के लिए इस प्रोजेक्ट जो है ये दिल्ली सरकार ने काफ़ी पूरे किए, पूरे हो रहे हैं, जिससे दिल्ली का वाटर पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया। सोनीपत और पानीपत से हमने शुरुआत की थी, दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर दिए और उस समय गंगा में हमने 25,000 करोड़ रुपए के काम किए और 80% गंगा को हमने शुद्ध बनाया और गंगा को शुद्ध बनाने के लिए हमने यमुना को भी शुद्ध किया। आप बिजनेस के इसलिए आप एक अच्छा मॉडल को स्टडी करिए कि मथुरा में हमने एक मॉडल हाइब्रिड एन्युटी बनाया, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने किया है। जब मैंने रोड में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लाया तो फिर मैंने गंगा में भी वो मॉडल लाकर कोशिश की और उसमें ये कोशिश थी कि 40% हम लेंगे, 60% इन्वेस्टर लगाएगा और उसका जो पानी शुद्ध होगा वो पूरा मथुरा का 20 MLD पूरा गंदा वो शुद्ध करके जो यमुना में आ रहा था वो इंडियन ऑयल खरीदी करेगा और 20 करोड़ रुपए साल के देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, इंडियन ऑयल में ऑपरेशन भी किया, प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है शायद पूरा हो गया आया है। तो यमुना का भी क्लीनिंग काफ़ी किया है और गंगा से काली नदी और बहुत से नाले थे उनको भी उस समय अच्छा करने का मौका मुझे मिला और वो काम से गंगा जब वो कुंभ हुआ प्रयागराज में तब मैं गया था तो साधु संत बहुत कुछ के पहली बार गंगा में स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ जल का अनुभव मिला। इसमें गंगा के साथ साथ यमुना का भी काम अच्छा। एक बात रह गई वो मैं कर नहीं पाया, वाटर मैं शिपिंग मंत्री था तब मैंने जलमार्ग का काम शुरू किया और उस समय अरुण जी वित्त मंत्री थे। मैंने उनको कहा कि 500 करोड़ मुझे इसके लिए आप दो। उन्होंने कहा लेकिन ये काम कभी जन्म में नहीं होगा, आप करना मुझे, आप मत करिए और मत करिए। मैंने कहा आप थोड़ा मौका दीजिए, मुझे लगता होगा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, होगा। तो बोले मैं वही पैसे देकर फायदा नहीं, आप मत करिए। और मोदी जी ने कहा कि एक बार देखो ये घोषणा कर रहे हो, ये महंगा पड़ेगा, नहीं हुआ तो मतलब आप विश्वास रखिए। और आज गंगा का जलमार्ग पूरा हो गया, वाराणसी से हल्दिया ये हमने जलमार्ग पूरा किया और ट्रांसपोर्ट चालू हो गया और वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर 4 जगह पर मल्टी मॉडल हब बने। वाराणसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मल्टी मॉडल हब यानी जहाँ रेलवे भी है, रोड भी है और पानी भी है। और उसके साथ साथ अभी हल्दिया का भी पूरा हुआ है और साहिबगंज का भी प्रधानमंत्री ने किया, केवल गाजीपुर का फाइनल स्टेज है। इसके साथ 40 रिवर पोर्ट गंगा में बना है और जिसके कारण वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 3 मीटर का ड्राफ्ट हमने किया तो अभी कोई भी जहाज उसमें 5,000 टन तक चल सकता है। दूसरी ओर प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक मैंने 1 मीटर का ड्रेजिंग पूरा कर दिया। तो आज हमारे MPBS सी प्लेन, एयरबोट्स, हमारे बाज अब जा सकते हैं तो इलाहाबाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में मैंने ये कोशिश की थी कि प्रयागराज से यमुना से दिल्ली तक जलमार्ग बने और मेरी ये कल्पना थी कि यमुना से हवाई जहाज से उठकर 15 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतर गया MPBS सी प्लेन से और वहाँ से 1 घंटा ताजमहल देखकर फिर 15 मिनट में दिल्ली वापस। तो ये कठिन नहीं है। तो ये हमने ये MPBS सी प्लेन मैंने उस समय हमने शिपिंग की था तो उसकी परमिशन दिलाई और ये सरदार सरोवर को शुरू की। एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिशन देने के लिए काफ़ी अड़चने पैदा कर रही थी। मैंने कहा देखो आप परमिशन दो, नहीं तो मैं नया एक्ट बनाऊंगा। आप जिसको MPBS सी प्लेन बोलते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोलता तो आज वो थोड़ा सा यमुना का काम आगे नहीं होगा, उसका DPR बना है, वो आगे हो जाएगा। तो मेरी कल्पना ये थी कि सोनीपत पानीपत से माल डायरेक्ट बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया तक जाएगा और पानी पे ट्रैफिक होगा। अब ये जो हल्दिया है, हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है जिससे ब्रह्मपुत्रा में आता है और फिर ब्रह्मपुत्रा से पूरा मैंने ड्रेजिंग पूरा किया। और जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी, सुषमा जी को मिली थी उस समय, तो उन्होंने मुझे बुलाया, रिक्वेस्ट की कि आप हुगली पोर्ट में भी ड्रेजिंग करें।
मैं सुषमा जी की तरफ देख रहा था, उन्होंने कहा नितिन ये कर सके तो कर। तो मैं 250 करोड़ रुपये खर्चा करके वर्ल्ड बैंक की स्कीम में मैंने बांग्लादेश में घुसकर भी मुंगली पोर्ट का ड्रेजिंग पूरा कर दिया। तो अभी ब्रह्मपुत्र का पूरा ड्रेजिंग जलमार्ग हो गया, फिर बाराक रिवर का पूरा काम हो गया, और आगे आपको मालूम है साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक अब जा सकते हैं। तो मेरी कल्पना ये थी कि पंजाब हरियाणा का माल सोनीपत पानीपत से और दिल्ली से ये 5000 टन की बाग में डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया तक, बांग्लादेश तक गया। और इसमें एक बड़ा इकोनॉमिक्स था जो आपके कारण, रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा लगता है, और अगर आप रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये लगता है फॉर एग्जाम्पल, पानी से जाता है तो 1 रुपया। तो हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 17% है, चाइना की 8 से 10% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12%। जब रोड अच्छे बनेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट करेंगे। अभी दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, अगर वो 20 घंटे में जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 5% 6%। तो स्वाभाविक रूप से ये जलमार्ग से बहुत बड़ा प्रॉफिट। बीच में मैंने कोशिश की थी कि मारुति की गाड़ियाँ कांडला से चेन्नई जाएंगी, और चेन्नई में फोर्ड और बाकी कंपनी की गाड़ियाँ जाएंगी, प्रयोग किया था, सक्सेसफुल हुआ था। थोड़ी बहुत अड़चने आती, विशाखापट्टनम का लोहा कांडला में आना अहमदाबाद के लिए, तो काफी बड़े प्रमाण पर ये शुरू हुआ है। तो जलमार्ग का उपयोग करने में आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट, ताकि हम वाराणसी से अगर आपने माल आपका ट्रक तक ले गए या रेलवे से ले गए, और वाराणसी से पूरा नॉर्थ ईस्ट और बंगाल तक माल लेके जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। तो आने वाले समय में पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन डीजल के कारण है। और इसलिए दिल्ली के आजू बाजू में मैंने देखा कि बहुत दिल्ली में जाम है, दिल्ली प्लान नहीं है, और यहाँ किसी का घर मुझे नहीं लगता नियम से बना है, माफ करिए मुझे। और जो घर बनाता है वो रोड को अपने पार्किंग का अधिकार समझता है, सब लोग गाड़ियाँ अपने रोड पर खड़ी करते हैं। तो ये दिल्ली में रोडें ही सब गायब हो जाता है। तो मैंने एक स्कीम तैयार की है, और केजरीवाल से चर्चा भी की, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसमें सपोर्ट करेंगे। और वो स्कीम ये है कि दिल्ली के कंटेनर डेपो, ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के गोडाउन्स, फूड के, सीमेंट के, प्री-कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट, ये पूरा एक स्टडी चालू है। और कोशिश ये है कि इनको सबको हम दिल्ली के पेरिफेरल रोड पर नए लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट हब बनाकर सबको दिल्ली के बाहर लेके जाए, उनका भी फायदा होगा। क्योंकि जो दिल्ली से बाहर माल जाता है उसको दिल्ली के अंदर लाने में तकलीफ होती है, और इसलिए उनको दिल्ली सिचुएशन है उनका भी फायदा होगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिल्ली से 1700 गोडाउन्स और इस प्रकार के हर कुछ होलसेल मार्केट से भी बात कर रहे हैं, उसका DPR तैयार होगा, प्लान तैयार होगा। और आने वाले 15 दिन में मैं केजरीवाल जी के साथ, DDA के साथ म्यूनसिपल का अपना मीटिंग कर रहा हूँ, और इनका सबका सहयोग अगर मिल जाएगा तो मेरे ऑलरेडी हमारी NHAI में हमारी कंपनी है जो लॉजिस्टिक पार्क बनाती है, रोड पे केबल कार बनाती है। हम देश में कम से कम 1 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी बना रहे हैं। तो उसी कंपनी को ये काम दिया है, और निश्चित रूप से ये होने से दिल्ली का जो विशेष रूप से एयर पोल्यूशन जो होता है डीजल के कारण, तो निश्चित रूप से कम होगा, और सब ट्रैफिक बाहर के बाहर जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पोल्यूशन को कम करने वाली है वो है डीजल और पेट्रोल का कम यूज। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में हम 12 लाख करोड़ रुपए अब खर्चा कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस को इम्पोर्ट करने के लिए। और मैं 2009 से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर। तो हम लोग इथेनॉल बना रहे थे, आज हमारी इथेनॉल की इकोनॉमी 40,000 करोड़ की है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी हम 2 लाख करोड़ की बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अब इथेनॉल कॉर्न से और इथेनॉल राइस से बनाने की अनुमति दी है। आपको पता होगा कि हम लोग राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस और शुगर सरप्लस है।
हम पूरे दुनिया को चावल सप्लाई कर सकते हैं। 350 लाख टन चावल हमारे गोदाम में खड़ा है। हमारे यहाँ व्हीट है, पंजाब और हरियाणा में हम लोग मंडी में डाल देते हैं, पानी में खराब हो जाता है, रखने के लिए गोदाम। व्हीट हमारे एमएसपी से भी नीचे प्राइसेस चल जाती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। हम 1,40,000 करोड़ का इम्पोर्ट एडिबल ऑयल करते हैं, सरसों, सोयाबीन, पल्ली, ये सब हमारे कम है, एडिबल ऑयल शॉर्ट है। तो क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो अब हमने ये कहा कि 12 लाख करोड़ के इम्पोर्ट के बजाय हम क्यों नहीं हमारे देश में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन इंडिजिनियस सोल्यूशन। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने इस पर काफी काम किया। अभी हम लोग फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब है, मैं अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है और उनसे अनुमति लेकर हम तुरंत, क्योंकि हमने यूरो 6 नॉर्म पर हम गए, तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के यूरो 6 के नॉर्म में थोड़ी टेक्नोलॉजी नहीं अभी नहीं हुआ है। तो यूरो 6 यूरो 4 के नॉर्म पर इथेनॉल अगर आता है तो भी यूरो 6 के नॉर्म से कम पोल्यूशन है। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बात एफिडेविट करके कही है, उनकी अनुमति मिल जाएगी तो हम इसको मैंडेटरी करेंगे। इसका मतलब क्या था, ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में ये BMW, टोयोटा, होंडा, मर्सिडीज, ये जितने ब्रांड है आपके पास, इनके सबके फ्लेक्स इंजन है, कॉस्ट सेम है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है कि इट इज ए चॉइस विद ए कंज्यूमर कि वो 100% पेट्रोल ले या 100% इथेनॉल। इथेनॉल का रेट है 65 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट 110 रुपये लीटर। तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 200 ml ऑफ इथेनॉल। तो थोड़ा 20 से 25 रुपये आपकी भी बचत है। पर इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं करता, कम बिल्कुल लिक्विड है, और इसलिए फ्लेक्स इंजन को हम मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंने बजाज की और टीवीएस की स्कूटर और बाइक 100% इथेनॉल फ्लेक्स इंजन पर लॉन्च की। अब मैं पूना में गया था, प्रधानमंत्री जी ने हमारे 3 इथेनॉल पंप पूना में ओपन कर दिए। अब पूरे देश में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी पेट्रोल मिनिस्टर ने कहा है कि आप इथेनॉल के पंप खोलेंगे। इथेनॉल इंडिजिनियस है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। किसानों को फायदा होगा, हमारा इम्पोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो इसके बाद आप जो भी पेट्रोल गाड़ी खरीदी करेंगे वो 100% फ्लेक्स इंजन ही मैंडेटरी होगा। इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है। एक बॉश कंपनी का फिल्टर है और जो लोहे के वॉशर थे उसके बजाय रबर के लगेंगे, तो कॉस्ट भी सेम ही होगी। और ये अगर गाड़ी आएगी तो इथेनॉल के पंप आएंगे और इथेनॉल की ऑटो रिक्शा चलेगी, इथेनॉल की बाइक चलेगी, स्कूटर चलेगी, और आपकी गाड़ी में 100% इथेनॉल आएगा तो पोल्यूशन कम होगा। अब इथेनॉल का जो सोर्स था, शुगर फैक्ट्री में शुगर सरप्लस, शुगर फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है, अभी थोड़े शुगर है इथेनॉल के कारण। तो उसमें पहले 4% मोलाइसिस जिससे शराब बनती थी, शराब यानी इथेनॉल देती है शराब। तो ये मोलाइसिस से इथेनॉल 4% अलग था। फिर हमने BHB मोलाइसिस से इथेनॉल यानी 3% शुगर और मोलाइसिस में डाल दी, तो BHB मोलाइसिस बन गया 7%, तो उससे इथेनॉल हमने अलाउ किया हमारी सरकार। फिर हमने शुगर के जूस से इथेनॉल, ये भी हमने अलाउ कर दिया। और अब हम शुगर को भी मोलाइसिस में डालने की अनुमति देने के बाद, तो इसके कारण क्या होगा कि शुगर कम होगी। हमारे देश में 240 लाख टन शुगर लगती है। पिछले साल हमारे पास 310 लाख टन शुगर तैयार हुई, 60 लाख टन एक्सेस। तो शुगर के भाव ही डाउन हो गए। तो इधर गन्ने के भाव पॉलिटिकली बढ़ते हैं, शुगर के भाव डाउन होते हैं, शुगर इंडस्ट्री पलट बंद हो रही है। तो अब हमने ये तय किया कि शुगर क्यों बनाते हैं, शुगर के बजाय इथेनॉल बनाते हैं। अब इथेनॉल के 450 नए प्रोजेक्ट देश में आ गए, और इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अगर अल्टरनेटिव करके यूज होगा तो देश में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं लगेगी। तो पहली बात तो इथेनॉल को हमने प्रोत्साहित किया। फिर कौन से इथेनॉल, राइस से इथेनॉल, 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल होता है।
और हमारे यहाँ इतना राइस पानी के कारण सड़ा हुआ पड़ा है। तो हम स्वाभाविक रूप से गेहूँ, बाजरी, मक्का, पाम सब सरप्लस होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमने अलाउ किया हुआ है। इसके साथ साथ अभी 450 फैक्ट्री ने परमिशन मांगी है। सरकार ने स्कीम बनाई है और इथेनॉल की फैक्ट्री काफी बड़े पैमाने पर, जहाँ राइस होगा वहाँ राइस से, जहाँ शुगर केन होगा तो शुगर केन से, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ शुगर मिल है, बिहार में थोड़ी होते हैं, उड़ीसा में थोड़ी होती है, गुजरात में थोड़ी होती है। तो फिर गन्ना बढ़ेगा, क्रॉप पैटर्न बदलेगा, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो इस पर क्रॉप पैटर्न बदलने की कोशिश भी सरकार की ओर से हो रही है। तो हमारे देश में जो 12 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट है, वो अगर हम 5 लाख करोड़ से अगर कम करेंगे तो ये 5 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे, गरीबों के जेब में जाएंगे, ये रोजगार निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। ये एक तो इथेनॉल की बात है। दूसरी बात, हमारे देश में कोयला बहुत है और जो लो क्वालिटी का कोयला है उससे मिथेनॉल बनता है। आसाम पेट्रोलियम करके हमारी कंपनी 100 टन मिथेनॉल करके बनाती है, उसका भाव 18 रुपये पर लीटर मिथेनॉल है। और ये मिथेनॉल के देश में सरप्लस है, उसकी भी इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में, इसराइल में, चाइना में सब ट्रक मिथेनॉल पे चलते हैं। और ये जो मिथेनॉल बनता है उससे डीएमई बनता है। ये डीएमई जो है एलपीजी का अल्टरनेटिव है, ये सस्ते में गैस मिल जाएगा। हम एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं तो मिथेनॉल की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग बायो सीएनजी बना रहे हैं, जो आपके रिलेटेड प्रॉब्लम है इसका जो ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आजू बाजू में है, ये पराली जलाते हैं और पराली से 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। मीथेन होता है, मीथेन से बायो सीएनजी। और ये बायो सीएनजी पर मैंने अपना खुद का ट्रक पहला लॉन्च किया, एक ट्रैक्टर लॉन्च किया। एक ट्रैक्टर अगर सीएनजी यूज करता है तो 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। अभी हमने सीएनजी के ऊपर काफी बसें चल रही है, आप दिल्ली में गाड़ियां चल रही है। तो सीएनजी और पेट्रोल में कितना फर्क है आपको मालूम? आप जो सीएनजी यूज कर रहे हो वो पेट्रोलियम का है। अगर दिल्ली में ये जो पराली है इससे अगर बायो सीएनजी बन जाएगा, वैसे बहुत प्रोजेक्ट इंडिया आ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आने से पराली जलना बंद हो जाएगा। पराली अब फुकट में मिल रही है तो उसका 2 रुपये किलो बहुत है। तो पराली से सीएनजी बनाने से तो पानी चाहिए। पराली से सीएनजी बनाने के कारण आप दिल्ली में जो पेट्रोलियम का सीएनजी यूज कर रहे हैं उसके बजाय ग्रीन एलसीएनजी यूज करेंगे तो बहुत बड़ा आप पोल्यूशन भी कम होगा और पराली का भी पर्याय मिलेगा। और एक अच्छी बात है, इसके साथ एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि ट्रक, बसें जो 1000 किलोमीटर एक दिन में चलती है तो एलएनजी पे कन्वर्ट करें। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रयोग करते रहता हूँ। नरोड़े साहब को भी रिक्वेस्ट करूँ, ये मिलिट्री में डीजल व्हीकल को बैन करें। सर मैंने हरपाल सिंह को नागपुर बुलाकर पूरा दिखाया और उस दिन मनोज पांडे भी थे, उनको सब देखा उन्होंने और मैंने उनको रिक्वेस्ट की मिलिट्री के व्हीकल का डीजल को ड्रॉप, एलएनजी, सीएनजी और इथेनॉल पर। अभी हमारे देश में विशेष रूप से एलएनजी का एक डीजल का एक ट्रक एलएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं और ये पैसा 295 डेज में वसूल होता है। डीजल की प्राइस और एलएनजी की प्राइस और उसकी कैलोरी वैल्यू की तुलना में इतना फायदा है कि हमारा डीजल की तुलना में एक साल में 10 लाख रुपए निकल जाता है। तो जो 1000 किलोमीटर बस और ट्रक है वो एलएनजी पर करिए और एलएनजी हमारा फ्यूल है। बायो सीएनजी एलएनजी के बाद जो हमारा सबसे अल्टरनेटिव चाहे वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, 86% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है। अब बैटरी के ऊपर की ट्रक, बसेस कोई ज्यादा दूर नहीं है,
बसेस तो ऑलरेडी आई है। कल मैं जोजिला में था तो हमारे पत्रकारों को लेकर 2 बसेस थी, मेरा इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिक बस पढ़ाते हैं, तो उनकी तो इलेक्ट्रिक बस में पत्रकार बैठकर श्रीनगर से वहां तक, तो इलेक्ट्रिक बस नई बात नहीं है, इसमें इकोनॉमिक्स है। मुंबई में एक डीजल की बस बेस चलाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 115। मैंने 100% इथेनॉल पर हमारे नागपुर में स्कैनिया की बसें चलाई गई थी, इसलिए उसका खर्चा 78 रुपीज पर किलोमीटर था। अब पूना में इलेक्ट्रिक बस का टेंडर निकला वो 50 रुपए पर किलोमीटर है। तो मैंने केजरीवाल जी को ये सुझाव दिया कि दिल्ली में 100% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर ही होगा, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई है। मैंने ये टीवीएस की और बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने बाइक लॉन्च की। अब बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियां भी बना रही है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, या आपका ये जो ई रिक्शा है, ये मैंने उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाकर झगड़ा करके उसको एस्टैब्लिश किया। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी खींचने का काम करता था, अब 40 लाख लोग ऐसे जिनका ये मेहनत करने का काम छूट गया, उनको न्याय मिला है। और कुछ लोग बाकी है देश में कि मैकेनाइज्ड जीवन की रिक्शा से एक नया जीवन होता है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि इस देश में कोई अब सामान्य नहीं, मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा, ई कार। और दिल्ली के एक व्यक्ति ने तो मुझे पानी पूरी का दुकान उसके ऊपर, आइसक्रीम का दुकान उसके ऊपर, वो ई रिक्शा पे बना दिया, चाइनीज फूड उसमें मिलता है। तो ये ठेले और इससे चक्कर से हटकर ई रिक्शा, तो इलेक्ट्रिक डिमो उसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है, तो लिथियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, इसके साथ भी हम काम करेंगे। मेरा विश्वास है कि जो बैटरी की केमिस्ट्री है इसमें हिंदुस्तान में बहुत काम हुआ है और आने वाले समय में हम देश में इसको लीड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है और हमारी जो ऊर्जा है उसमें 38% ऊर्जा ग्रीन है, सोलर पावर है, और उसका रेट अब 1 रुपया 90 पैसे ही मिलता है। जो पावर हम 4.5 और 5 रुपए यूनिट खर्चा करते थे, ये पावर अभी 8.5 या 9 रुपए यूनिट की, वो अब 1 रुपया 90 पैसे में मिलेगी। तो पावर के रेट भी कम होंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। तो अब हम लोग पूरे ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी प्रधानमंत्री जी ने ये रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे का काम किया। मैं हिमाचल में कुछ में मनाली गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और अभी के चीफ सेक्रेटरी मुझे मिले, मैंने उनको पॉलिसी बना दी। मैंने कहा आप जो भी रोपवे केबल कार डालेगा उसको आप 2.5 रुपये पावर दे, आपके पास पावर सरप्लस एग्रो पावर है। और उन्होंने कहा शायद 3 रुपये या 4 रुपये की पॉलिसी मेरे पास भेजी और 15 प्रोजेक्ट भेजे हिमाचल में। तो कल मैंने एलजी मनोज सिन्हा जी को कश्मीर में बोला तुम भेजो पैसा मैं कर दूंगा, 15-20 जितने रोपवे केबल कार फिर मुझे भेजो, मुझे पड़ेगा। फिर मैंने लद्दाख लेह के एलजी को कहा आप भी तैयार करो, मुझे भेजो। पूरे देश में ये जो पहाड़ी प्रदेश है जहाँ घूम घूम के डीजल फूकते लोग ऊपर जाते हैं, नरवणे साहब को मिट्टी में तो पता ही है कि कितना तकलीफ होती है पहाड़ी क्षेत्र में। कल मैं कारगिल था, जो जेडगोड टनल था, तो मैं तो 2 घंटे में अस्वस्थ हो गया। आप कैसा काम करते हुए मैं वहाँ हमारे सैनिक कारगिल के नीचे बहुत कठिनाई में काम करते, मुझे देख के आंखों में आंसू आया। वो 3-3 दिन 4-4 दिन लद्दाख लेगा ट्रैफिक बंद रहता है, एक तरफ इधर से जाता है एक तरफ उधर, और 6 महीने गैस, पेट्रोल, सब्जियां कुछ नहीं आता, ट्रैफिक बंद। और वहां से जो लोग हैं वो सोनभद्र के निकलकर कश्मीर में श्रीनगर में आ जाते हैं। अब हम वहाँ टनल बना रहे हैं, जोजिला आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 13.5 किलोमीटर की, और दूसरा हमने छेड़गोड़ पूरी कर दी है। अब लद्दाख लेह से लोग निकलेंगे तो श्रीनगर पहुंचेंगे, और श्रीनगर से पहुंचकर डायरेक्ट जम्मू श्रीनगर रोड से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई तक जा सकेंगे। पूरा रोड क्लियर कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट में डीजल पेट्रोल में हम इंडिजिनस फ्यूल में गए, और इसलिए ये जो मैंने कहा इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी और इलेक्ट्रिक,
अब इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है जिसमें एसोसिएशन ने एक अगला कार्यक्रम करना चाहिए, दैट इज द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कि जैसे सऊदी देश अरबी देश कहते हैं ना कि हम पेट्रोल डीजल हमारे पास है, ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। और अभी हमारे देश में हमने प्रयोग कर लिए कि समुद्र के पानी से सोलर पावर का यूज करके कुल 70% कॉस्ट पावर की है और पानी फुकट में, तो उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, तो कॉस्ट एकदम कम आएगी। अभी मैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सीवेज वाटर जो है गंदा पानी, उसको सोलर वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन पर जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर लंदन में गाड़ी चलती है रेलवे की, और ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग हमारी गाड़ियाँ, कार, ट्रक सब चलेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में जो हम लोग थर्मल कोल यूज करते हैं, उसके बजाय हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें। और वो बात आ रही है कि इसके बाद नया एक्सपांशन जो है वो हमारे फर्नेस में हमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें, हमें फर्नेस में यूज करें, पोल्यूशन भी है, इको फ्रेंडली है, तो आने इम्पोर्ट सब्सिट्यूट है और ये सस्ता होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री वर्ल्ड में बने, जैसे कोई पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट हमारे यहाँ देश में इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन में वर्ल्ड लीडर बने। इसलिए प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए देकर उसकी स्थापना की है और हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हाइड्रोजन की बस तैयार हो गई, ये हमारे अभी चलने भी शुरू हो गई, टाटा भी बना रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इन सब बातों का उपयोग करने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। एक 2 दिन पहले शायद सीआईआई फिक्की के साथ एक कार्यक्रम, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे लेलैंड से लेकर टाटा के सबके थे, मैं था। तो ब्राजील के टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि उनके हवाई जहाज लोग इथेनॉल पे चला रहे हैं। इथेनॉल पर हवाई जहाज चल सकते हैं, हम क्यों पोल्यूशन करें? क्यों ये पूरी एयरलाइंस हमारी घाटे में चल रही थी? उसका कारण ये फ्यूल की भाव, ये जो बंद पड़ी इसका कारण फ्यूल की भाव। तो अभी हमारे ऑलरेडी एयरफोर्स ने इस 26 जनवरी के पिछले 26 जनवरी को हमारी जो हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, ये बायोफ्यूल पे चलाए थे। और 1-1.5 साल पहले मैंने स्पाइस जेट को प्रोत्साहित किया था ये सीधी को, और देहरादून से उनका फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर देहरादून से दिल्ली आकर मैं उसको स्वागत करने के लिए गया था। वो दिन अब दूर नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Conversion of waste into wealth is the future. जो sewage water है उससे valuation, no one is best. It is depending upon the technology. It is depending upon the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और इसलिए मैं आज आपके सामने इसी बात का विश्वास देने के लिए आया कि और 3 साल की हम दिल्ली को एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्ति दिलाएंगे। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कठिन काम है, आपका भी सहयोग चाहिए। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री था, मुझे भी पता नहीं था, मुझे ये मेरा भरोसा आ रहा है। मैं नागपुर में रहता हूँ, 11वें बजने को मेरा था और आजकल मुझे अच्छी आदत हुई, सुबह उठकर मैं 1 घंटा प्राणायाम करता रोज का। तो मैं गच्ची में बैठता था, तो मैं अपना प्राणायाम कर रहा हूँ, हाथ बज रहे धनाधन, तो नीचे में जितना आवाज नहीं तो ऊपर में जा रहा, तो मैं बड़ा त्रस्त हो गया। फिर मेरे घर के सामने क्या है कि रोड है, ऊपर में ब्रिज है, उसके ऊपर में तो मेट्रो आती है, उसका भी आवाज आता है। तो फिर मैंने खुद डिटेल में गया, तो मैंने कहा ये क्यों किया आवाज ऐसे हॉर्न मक्खियों के। अब लाल लाइट तो मैंने बंद कर दिया, अब साइरन भी बना के लगभग बंद कर दिए। अब एम्बुलेंस के और कुछ रहे
और जो है वो भी तकलीफ दे रहे हाँ 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 आवाज कर। तो मैंने भी सोचा कि ये कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने नीरी के डायरेक्टर थे रिटायर्ड डॉक्टर बटेकर, उनके अध्यक्षता में वो उसका स्टडी करा और मैंने कहा कि ये जो हॉर्न बजता है गाड़ी में, क्या इसके बजाय बांसुरी नहीं बज सकती, हारमोनियम का आवाज नहीं आ सकता। तो मुझे एक ने लिया कि जर्मन था चू, उसने आकाशवाणी की स्थापना के पहले वो 6:30 बजे 5:30 ट्यून लगती थी, तो वो ट्यून उसने मुझे बताया कि ये करो, मतलब ये ट्यून एम्बुलेंस पे लगाओ तो गाने में अच्छा लगेगा। नहीं तो कहाँ इससे दबा तक कोई चिंता ही नहीं करता, कर्कश आवाज आती है। तो अब मैंने ये तय किया कि हमारे एक्ट में कोई है, तो मैं धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूँ, सब मैन्युफैक्चर को कह रहा हूँ कि इसके बाद हॉर्न में आवाज तबले का आएगा, बांसुरी का आएगा, हारमोनियम का आएगा, इंडियन इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका वो और अच्छा लगेगा, काम में वही आएगा। ये ऐसे हाथ मत करो, तो मैं उसके लिए कानून देना। तो आने वाले समय में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन का कंसर्न, और दिल्ली उसमें सबसे वर्स्ट है, और इसलिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करके हमें इस बात को खत्म करना है। हमने बहुत अच्छा प्लानिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसमें आप लोग भी इनिशिएटिव लेंगे, जनता में अवेयरनेस पैदा होगा। और उसमें और एक अच्छी बात हमने की है, कुछ लोग नाराज भी हुए, स्क्रैपिंग पॉलिसी लाइए कि पुराने गाड़ियों को भंगार में डालो। अब 15-15 साल 20-20 साल का ट्रक धुआं छोड़ के जा रहा, उसका कोई ये नहीं। आज नई टेक्नोलॉजी बदली है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर खरीदी थी, तो मुझे कह रहा था डीलर ये 28 किलोमीटर एवरेज देती है, तो बोला चलो ये ले। अभी कितना है 82 टेक्नोलॉजी बदल गई। अगर पुरानी गाड़ी अगर स्क्रैप होगी और नई गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें फायदा है, फ्यूल की बचत है, पोल्यूशन नहीं होगा, एफिशिएंसी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, और उस गाड़ी की भी कीमत मिलेगी कुछ ना कुछ। और इससे जो एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर वेस्ट निकलेगा, उससे हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे। और आज हमारे इंडस्ट्री का वॉल्यूम ऑटोमोबाइल का 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3 लाख करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। ये हीरो, बजाज और टीवीएस, उनका 50% टू व्हीलर का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले समय में हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कॉपर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा रिसाइकलिंग होगा स्क्रैपिंग के कारण, तो हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे। और 7.5 लाख करोड़ की जो हमारी इंडस्ट्री है, वो आने वाले 3-4 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की करने का हमारा विचार है। और आप देखिए इसका फायदा है, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये देश में सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और अगर ये दुगनी हो जाएगी तो आज 50 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो कल हमारे देश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर ऑल इंटरनेशनल रेप्यूटेड ब्रांड, इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। अब हम चाहते हैं कि हवाई जहाज भी है, सब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ शिपिंग, पोर्ट्स, हमारे शिप्स हमारे यहाँ है। MPBS जो अभी राइफल जो हमने दिया वो हमारे यहाँ नागपुर में बनेगा, और अभी धीरे धीरे उसको मुझे कहा कि पूरा 100% इंडिया में बनाएंगे। तो हम लोग इम्पोर्ट करने के बजाय हमारे देश में अगर ये सब बनेगा तो देश में एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश में रोजगार निर्माण होंगे, GDP बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। तो आर्थिक दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न आत्मनिर्भर भारत जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो, उस भारत का निर्माण हम सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से होगा। और 3 साल में तो मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि 3 साल में दिल्ली के जितने ये तीनों के जो पोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं वो बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से उसमें यश प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Not just all of us here, but our children will be grateful to you if pollution from Delhi goes away. My children are locked up in their homes all of winters for the last 4 years.
We have a pollution tracking group in our colony. For the last 6 months, every day we've had clean air. My children have been going out to play, and we're very grateful to you for making this possible. The childhood privilege of playtime should be available to every child. And thank you, sir, for making them pollution free. It is our privilege and pleasure to have with us the Honourable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Gadkari, and the Chief of Army Staff General Manoj Mukundavarapani. I would request them to please release the 116th PhD Chamber of Commerce and Industry Yearbook and the annual report as well. I would request the PhD CCI leadership team and Dr. Sharma, the man who has penned this book, to please come on stage for the release of this book, necessary for making India more resilient and more prominent in the global ecosystem. The book discusses in detail about India's resilience in the world. Thank you. I would also request you to please release the annual report. Discusses in detail about India's resilience in the world ecosystem. The projections for the following the size of $5 million in $10 million. The structural push to reform in the pandemic times. The thrust to ease of doing business. Key sectoral analysis on agriculture, manufacturing and services and the emerging contours of MSMEs. I would now like to request the Honourable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, to please present a memento to the outgoing PhD CCI President, Mr. Sanjay Agarwal. क्या